So these final 2 months are going to be much more crucial as compared to whatever 6.5 months you have spent in intermediate. You people had a shortened journey of 8.5 months in comparison to total period. So you need to understand certain core principles rather than just focusing on individual topics or individual subjects. Because in my opinion, if you can understand some core principles, this course can become easy in the exam format. So I just collected certain broad pointers and then I will give you a specific, let's say chapter by chapter guidance for 4 subjects. We should be done by 1:30. For the first time, you're going to give an exam which is a huge volume. It's more a volume game rather than not margin. Definitely it is not a margin, rather than let's say intellectual level. But to manage a volume, if you try to mug up, it is next to impossible. Next to impossible. Like these books are just few books of few subjects. It's not all the books also. So how much you can manage in a matter of 2 months is limited. You have a limited time available with you. I just presented a couple of things here. Listen it to, and then I will come down to specific subject guidance. I hope each one of you is gonna give exam for the first time, or there might be some repeaters, might be, whatever. That is irrelevant factor. But it is sure that each one of you is gonna pass intermediate for the first time. You're not passed it so far. The line which says out there, to achieve something you have never achieved before, you must become someone you have never been before. You have to accept that fundamental change. Obviously, if you have done nothing in the last 6.5 months, attending this one lecture or a motivation session and then giving an exam is a full of crap, full of bullshit. You attend my motivation session, you will pass. I'm not claiming that. You leave the lecture, open the book, start studying. Obviously. But assuming that majority of you have studied something so far till now, there is a decent chance of clearing an exam. Your degree of completion, your level of confidence as on today, or how much you are prepared on the individual subject doesn't matter so much that as compared to the spirit or the temperament that you are going to keep in the next 2 months. You have got 2 months from March and April, right? So you have to become someone you have never been before. You have to change your mindset. Last 6 months, 7.5, whatever. You could have come up under stress multiple times. You might not have attended all the lectures. You might have bunked. Whatever the reason, just listen out to a few thoughts and then we will understand. I have been stressing a lot on internal sources rather than external sources of motivation or facing some tough things in the life. So I coupled out few things about internal pressure and a few examples, and then we can come down. Majority of the students do not realize their own potential. आप शायद मराठी मीडियम से आ सके हो या गांव से आए हो कई, that is your background is not relevant. You might have a potential, but बहुत सारा बच्चा ना उस पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं करता है. And they just wander around here and there. क्या ये एग्जाम है, जस्ट मेरे को बुक पास करने जाना है. नहीं, you have to do the things to know who you are. आप बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, ये मेरे को समझेगा ही नहीं, मैं क्यों करूं, वाई डू आई ट्राई टू कैलकुलेट एक्सआर, अरे मेरे को कभी जिंदगी में समझने वाला ही नहीं है, या वाईटीएम मैं क्यों ट्राई करूं, या ईल्ड कर मैं क्यों ट्राई करूं, या क्यों ये फालतू का मनी सप्लाई मैं ट्राई करूं. बहुत सारी चीजें जो हमने की होगी. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ये मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरे को कभी ये समझने वाला ही नहीं है. Why do I take an effort? Why do I travel in that direction which I cannot walk until the end? ऐसा नहीं होता है. आपको शुरुआत करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा. So you have to do the things to know who you are rather than don't wait until you know who you are.
to make the things possible. You have to do it first, then you will realize what is your capability, rather than what? Waiting until you can understand, अच्छा मेरे में ये capability है, तो by that point of time would have gone. By that point of time would have flied. So अगले 2 महीने तुम्हारे पास है, 2 महीने में आपको ये नहीं करना है कि सेल्फ डाउटिंग करो कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरे में ये पास होने की कैपेबिलिटी क्या, मेरी औकात है क्या. बेसिक इन शॉर्ट, अगर आपने डिसेंट पढ़ाई किया है, आपकी औकात है, हर एक की औकात है. आपने कितने लेक्चर्स बंक मारे हैं, मैंने आपको कितनी गालियां दी, या आपने कितने होमवर्क्स किए थे, आपने कितने टेस्ट लिखे थे. चलो लॉजिकली आपने सब कुछ ठीक तरीके से करना चाहिए था, लेकिन आपने ठीक नहीं किया है, तो भी आप में वो पोटेंशियल है. प्रोवाइड यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द कोर्स इज. आपने लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन किया था. चलो आपने टेस्ट नहीं लिखे होगे, थोड़ा बहुत दिक्कत जाएगा आपको, आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा होगा. लाइक राइट नाउ यू हैव बैकलॉग ऑफ 1.5 month ऑफ लेक्चर्स. नवंबर 23 के लिए सोचना. फिर ऑब्वियसली 1.5 month का बैकलॉग है, तो 2 महीने के अंदर 1.5 month का बैकलॉग तो आप कवर नहीं कर सकते हो. बट अज्यूमिंग कि आपने डिसेंट लेक्चर्स अटेंड किए, बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है, यू हैव टू बिलीव इन योर ओन कैपेबिलिटीज एंड प्रोसीड. क्यों? इंटरनल सोर्सेस के ऊपर ये देखो, ये जग्गी वासुदेव और सदगुरु जी ने बोला था, ये व्हेन यू आर एंड व्हाट यू आर इज नॉट डिसाइडेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, you are in a dignity. Now I do not want dignity or peace of mind or other things. I basically want you need to realize, can you crack this exam. आपके पास वो सेल्फ इवेल्युएशन आपको करना पड़ेगा. आपका बैकलॉग बहुत ही ज्यादा है, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. बोथ द ग्रुप्स कम डाउन टू 1 group, बट आपका बैकलॉग मैनेजेबल है. 4-5 दिन इधर प्लस माइनस हियर देयर. मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा. और अगर आपको लगता है कि 2 महीने जो 60 दिन आपके पास अवेलेबल है, 60-61 days व्हाटएवर, अप्रैल मार्च 31 एंड अप्रैल के 30, 61 days यू गॉट. अगर आपको लगता है कि आप 61 days में रीजनेबली मैनेज कर सकते हो, एक 10-15 दिन रिवीजन के लिए छोड़ के, डिसेंट, यू कैन गिव इट अप. आपको बोलता हूं ना. सो what you are supposed to do, external factors, there are so many external factors that are gonna come in your mind on a broad basis. घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चालू हो सकते हैं किसी बच्चे के, आपको सोच के फायदा नहीं है, बिकॉज आप कितना भी सोचोगे उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है. इट कुड बी रिलेशनशिप इश्यूज एट होम, इट कुड बी हेल्थ इश्यूज एट होम. ऑल सच इश्यूज आर आउटसाइड योर कंट्रोल कंप्लीटली. देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन थिंकिंग ओवर such issues. The moment you are gonna think, you are not gonna perform. जो इशू आपके कंट्रोल में, क्यों सोचते हो फालतू का. मेरे I have seen, like I had taken lectures when my mother was paralyzed. My mother had suffered a paralysis stroke. घर से फोन आया, मैं बोला ठीक है, I'll come. I went out there, but I had to take a lectures. I brought her out here, admitted to the hospital. I didn't stop my lectures. One lecture had to be given off. I didn't give more than 1 lecture. Or when my daughter was born, she had legs twisted completely. Doctor said, we don't know whether she'll be able to walk or not. I said, okay, what is the solution? He said, therapy is the solution. You can give up some kind of therapies, and maybe it could happen. Magic could work in few weeks. Would never work. I said, okay, no problem. And that was same situation like 2017 batch. I said, boss, is it in my control? What is in my control? Look for some therapist or look for someone who can apply that particular therapy. That is in my control. That's it. Beyond that, nothing is in my control. So why should I waste my time and energy? And rather than waste, why should I not keep on doing my own duties? If I had taken money from the students, I need to ensure that I complete the lectures. I could say it. चलो यार बच्चों ने यार मेरे को छुट्टी देना पड़ेगा, कुछ पिछले बैच के रिकॉर्डेड मैं आपको दे दूं. I didn't do that. I finished my lectures. When you keep on doing your own work ना, बाकी पूरी चीजें तुमको कहीं ना कहीं से हेल्प करती. कैसे हेल्प करती, क्या करती, वो भगवान करता है या कौन करता है ना, मेरे में कैपेबिलिटी है ना, मैं उसमें जानना चाहता हूं. 4 दिन के अंदर सिया ठीक हो गई थी. मम्मी को बोला था, उसने थेरेपिस्ट चालू किया तो कुछ तो क्या, इट माइट हैव बीन स्मॉल इशू, इट माइट हैव बीन बिग इशू. डॉक्टर सेड इट इज अ मैटर ऑफ लक. अभी वो लक था क्या था, आई ब्लडी डोंट केयर. What you need to understand is the things which are outside your control, you just need to ignore it. And this is very easy to say it.
very difficult to implement. I have mastered that particular technique. And whatever happens, I can keep on focusing on my work, irrespective of if I decide. If I don't decide, obviously I will not do it. Whatever else external sources do it. तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, बाकी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, n number of issues could be there. उसके ऊपर आप जितना सोचोगे उतने आप डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे. You'll not come out of it. So ignore such issues. There could be. I don't know what kind of issues are there. You keep it with you. There's no need to tell to the world at large, oh, these are the problems that I'm facing. I just gave you few examples what I faced too. I've not given you many more examples. I've gone through n number of hassles in life, financially, health-wise, family relations-wise, everything I suffered, business-wise also. And I understood at every point of time, I could get back, and the only point of time where I could not manage my sugar level had spiked. And that I understood almost after 8 months. And then I said, boss, what the hell am I doing in the life? मतलब मैं तो कुछ फालतू चीजें बाहर की खाता नहीं हूँ, ना मेरा शेड्यूल कुछ खराब है, ना कुछ मैं होटल में जाके मतलब महीने में 10 दिन में खा रहा हूँ होटल में, मतलब महीने के 1 दिन में खाता हूँ, वो भी मैं रोटी खाऊंगा, ना दारू पीता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना मेरा कुछ बुरी आदत है, और मेरा शुगर लेवल स्पाइक कैसे हो गया? And then I understood it was only because I had allowed myself to be controlled by external forces, and I had taken unwanted stress of certain issues, and which went on without my understanding for a period of almost a year. Because I am very, very, very particular in terms of my timings and other things. And वो जब मैंने सोचा यार, it has started affecting me physically because I took a external stress, unwanted stress. Imagine what will happen to you people. If you think about the external factors, the only thing that you need to do is आपके हाथ में क्या है? घर में प्रॉब्लम्स है, दो ना, कोई इमोशनल बनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं. बी रूथलेस, बी क्लियर, join a library, attend or sit out there in the library. Be as simple as that. Don't even think. क्यों आपके कितने भी सोचोगे आप, उससे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है. अगर फर्क पड़ता है तो इंप्लीमेंट करो, नहीं फर्क पड़ता. मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आर इन माय ओपिनियन एट योर एज आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, घर में बाकी इश्यूज हो सकते, कुछ भी सॉल्व नहीं हो तो वो इग्नोर करो. पीयर प्रेशर, बाकी बच्चों का कितना पढ़ाई हुआ है, क्या हुआ है, कंपेयर मत करो ना. आपको कंपेयर करना है, आप टाइम पास वाला बच्चा ढूंढो, उससे साथ कंपेयर करो, करना ही कंपेयर तो, बट वो भी नहीं करना चाहिए कंपेरिजन, क्योंकि वो देयर इज नो पॉइंट. दिस एग्जाम, योर मार्क्स आर नॉट डिसाइडेड बाय, or your passing is not dependent on how much marks others have scored. It is not like a CAT or MBA exam where you get a percentile or a rank, right? So you can just ignore peer pressure others. Will you be able to complete a BCom or not? क्योंकि आपका BCom exam आपको ये 2 महीने में मेरे हिसाब से परेशान करने आएगा. सोचो मत. I don't know, depending on which level of BCom you people are giving, FY, SYT, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा. सो जो भी बीकॉम आप करने वाले हो वो आपको आके परेशान कर सकता है क्या? नहीं, हाँ कर सकता है. आगे है तो उस दिन, जिस दिन बीकॉम है उस दिन जाके पेपर दे दो, बात करो. डोंट इवन थिंक व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर. विल द चेकिंग बी डन अप्रोप्रिएटली और नॉट? नाउअडेज बच्चा बहुत सारा सोचता नहीं यार, कितना भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, वो ना वो आईसीए चेकिंग गलत करता है. मैंने आईसीए को चेकिंग के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करता. मैंने मेजॉरिटी ब्लेम जो था उनके आंसर्स पे था. अब वो आंसर्स कौन से देते हैं वो तुमको भी मालूम नहीं ना, मुझे मालूम है. वो जो चेकिंग के लिए आंसर्स यूज होते हैं वो मालूम नहीं. तो मैंने आपको इसके लिए आपको सिंपल रूल क्या बोला था? यू चेंज योर सेल्फ. डू नॉट अज्यूम पासिंग परसेंटेज इज 50. यू स्टडी एज इफ पासिंग परसेंटेज इज 55. 65 नहीं बेटा, वो 55. 65 मतलब थोड़ा औकात में रहना चाहिए आदमी ने. हर इन जनरल नहीं ना. व्हाई डू यू थिंक 55 अज्यूम कर लो, थोड़ा ज्यादा अज्यूम कर लो. आपके सोचने से आईसीआई का सिस्टम ना चेंज होने वाला है. विल द पेपर बी मेमोरी बेस्ड सर, एप्लीकेशन बेस्ड सर? ईआईएस का पेपर कैसा आएगा सर, या लॉ का पेपर कैसा आएगा, पूरा मेमोरी बेस्ड का रट्टा मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता मैं आपको. इतने सारे बच्चे पास हुए जिन्होंने ईआईएस कभी रट्टा नहीं मारा है, जिन्होंने लॉ कभी रट्टा नहीं मारा है, जिन्होंने ऑडिट कभी रट्टा नहीं मारा है, ना इन्होंने इकोनॉमिक्स रट्टा मारा है, ना इन्होंने कभी ईआईएस के चार्ट्स रेफर किए हैं, ना इको के चार्ट्स रेफर किए. तभी भी बच्चे पास हुए और ज्यादा मार्क्स से पास हुए, ज्यादा क्वांटिटी में पास हुए. सिर्फ आपको वो दिखता नहीं है क्योंकि वो बच्चा बोलेगा नहीं तुमको. तो ऐसा है क्या रट्टा मार के बच्चे पास हुए? बिल्कुल नहीं. हाँ, क्योंकि तू ना वो बाहर का बटा हुआ आदमी है, थोड़ा सा अतृप्त आत्मा है, तो इसलिए तेरे को लगता है. ऐसे जो बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको लगता है ये रट्टा मार के पास होते हैं,
इनको मालूम नहीं, क्योंकि वो टीचर को उसका मालूम नहीं रहता, इसलिए टीचर बोलता रट्टा मारो, और फिर बच्चे ऐसे बिलीव करने लग जाते हैं। सो बेसिकली ऐसा है क्या सारे के सारे बच्चे जो पास हुए वो सिर्फ रट्टा मार के पास हुए? नहीं। तुम्हारा सोचो ना, तुमको रट्टा मारना आता है, करो, नहीं आता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ लो ना। विल द पेपर बी मेमोरी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड? इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ, लेट्स से ये लॉ का मॉड्यूल है, लॉ आपने पढ़ लिया, कल लॉ का पेपर है, आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं ना, आपने जो लॉ महीना, 2 महीना पहले, 3 महीने पहले पढ़ा होगा, या जो ईआईएस आपने महीना भर पहले पढ़ा होगा, उस ईआईएस को आप एब्रप्टली रिकॉल करने की जब कोशिश करते हो ना, तब रिकॉल नहीं होता है। आपको हर पेपर के पहले 24 घंटे मिलेगा। आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से कौन से पेपर को ज्यादा छुट्टी है? लॉ के लिए ज्यादा छुट्टी है। आप आराम से रिकॉल कर पाएंगे। सेम प्रॉब्लम यू कुड फेस इन टैक्स ऑल्सो मे बी, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि मैंने जो पढ़ाई की वो मैं क्या 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकता हूं। एंड इफ आंसर टू दैट इज यस, आप 24 घंटे के अंदर इसको रिवाइज कर सकते हो, आराम से कवरेज कर सकते हो 24 घंटे के अंदर, तो डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी एज सच। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी, ट्रस्ट मी। एंड इफ यू डू नॉट हैव ट्रस्ट, आई टोल्ड यू, लुक आउट फॉर चार्ट्स, एज सिंपल एज दैट। चार्ट्स देखने का, याद रखने का, मेमोनिक्स रखने का, और वो करने का। सो मेमोरी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, आपको अगर वो पसंद है तो। बिकॉज जो भी है, तो आप ये मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा। आपके हाथ में क्या है? 24 घंटे के अंदर मैं क्या वो पूरा पेपर रिकवर कर पाऊंगा? विल आई फिनिश माई स्टडीज बिफोर एग्जाम? क्यों सोचते हो? वो सोचने से तुम्हारा पढ़ाई खत्म नहीं होने वाला जल्दी। वो सोचने से पढ़ाई खत्म नहीं होने वाला है। विल आई बी एबल टू रिकलेक्ट और नॉट? क्यों सोच रहे हो? ये सारे क्वेश्चन है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। बच्चे बोलते सर है ऐसा कैसे सर, हम रिकलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर क्यों नहीं सोचने का? क्यों? क्योंकि आज तुम जब याद रखने की कोशिश करते हो ना, तुम क्या करते हो, उसको मैं 2 महीने बाद रिकलेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, ये सोचते हो। एग्जाम 2 महीने के बाद का रिकलेक्शन का नहीं है। एग्जाम इज ओनली टेस्टिंग वॉट एवर यू स्टडीड यस्टरडे, कैन यू रिप्रोड्यूस इट टुमारो और टुडे, दैट्स इट, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मेनी डेज हॉलीडे। इफ यू कैन रिप्रोड्यूस इट, दैट्स इट। लॉ के पेपर के बाद भूल जाओ लॉ को, किसने पूछा है तुमको? Nobody has asked you। तो आप अभी ये 2 महीने के अंदर आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है, आपको कौन सा समझा है क्या, और आप क्या उसको 24 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो, बस। वो अगर आप कवर कर सकते हो 24 घंटे के अंदर और उसको रिकॉल कर सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। या इसके अंदर आप मतलब सिलेबस वॉल्यूमिनस हो सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर कवर करने का स्कोप है, एमसीक्यूज है वहां पर बचने के लिए। So rather than thinking unnecessarily, एक मैडम थी, मतलब अभी ये इतना सब याद कहां से रखे, तुम फालतू का सोच रहे, तुम्हारे सोचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को यस रिकलेक्ट होगा क्या, मेरे को ऑडिट रिकलेक्ट होगा क्या, लॉ रिकलेक्ट होगा क्या, या इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिकलेक्ट होगा क्या? क्यों सोच रहे फालतू का? 24 घंटे के अंदर पढ़ लो, उतना इंश्योर करो आप। 24 से थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिलता है, 24 से ज्यादा भी मिलता है कभी कभी, लॉ में ज्यादा टाइम है आपको, तो आराम से आपका लॉ रिकलेक्ट हो सकता है। तो अभी आपने पहले वो स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि मैं 24 घंटे में क्या पढ़ूं। बिकॉज अगेन आई एम कमिंग डाउन टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर। लुक एट दिस, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स, अज्यूमिंग देयर इज अ बर्ड इनसाइड इट, यू ब्रेक इट फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर का जो चिकन है वो क्या हो जाता है? मर जाएगा। बट इफ द सेम एग इज ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, देन द न्यू लाइफ बिगिंस, बाहर आ जाता पंछी। The great things happen from inside. You need a belief from inside rather than from my side or from anyone's side. You need to believe in your own capabilities कि आप ये 1.5 महीने के अंदर पूरा रिवीजन खत्म करके, आप पढ़ के एक बार 15 दिन के अंदर आप खत्म कर सकते हो, और वो पॉसिबल है। हाँ, मैं आपको 4 सब्जेक्ट का मैं आपको कैलकुलेशन, चैप्टर बाय चैप्टर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ यार। विकास को फाइल भेजने को बोला तो उसने भेजा कि नहीं मालूम नहीं, भेजा होगा, हाँ भेजा। So you need to understand your potential from inside rather than outside, and please trust me। आप ये जो मैंने बोला ना एक्सटर्नल सोर्सेस, आपको अगर किसी दूसरे फिलोसफी के ऊपर बिलीव करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप रट्टा मारिए, आप पढ़िए। बट मैंने जितने भी स्मार्ट लोग देखे हैं या जितने भी एनालिटिकल लोग देखे हैं ना, वो कभी भी रट्टा नहीं मारे हैं, उन्होंने कभी भी मेमोरी पे फालतू का स्ट्रेस नहीं लिया, उन्होंने चीजों को समझा है,
समझ के उसको एलॉबरेट करने का स्किल डेवलप किया है रादर देन रिमेंबरिंग एंटायर सेंटेंसेस, और उनमें पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रट्टा मारने वाले बच्चे पास ही नहीं होते, होते हैं ना। प्रोपोर्शन देखो आप, प्रोपोर्शन देखो, प्लस आगे के लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखो आप, बहुत सारी चीजें। लुक एट दिस पर्सन एंड देन यू ट्राई टू सी कि आप एग्जाम के लास्ट पीरियड में कैसे फेस कर सकते हो। He runs a wonderful office. He just inaugurated an office about a year ago in Bombay. Ye Chirag Chauhan is one of the survivors of 2006 Mumbai serial bomb blasts in the train that had taken place. He was traveling by that train, unfortunately, while pursuing CA. At that time, he was doing articleship, and his spinal cord was damaged, following which he got confined to a wheelchair. Even today, he runs his office from wheelchair. He also lost his father when he was barely 18-year-old during that process. Despite physical challenges and family responsibilities, he continued doing the CA studies and cleared the same in 2008. Took more attempt, but there's no choice. He didn't give up. He understood that the potential of inside force. उसने कोई रट्टा नहीं मारा है। उस टाइम पे रट्टा कंसेप्ट था ही नहीं यार, हमारे टाइम पे कोई रट्टा कंसेप्ट नहीं था। मेरे को याद नहीं मैंने कोई रट्टा मारा होगा, या हमारे बैच में किसी ने रट्टा मारा होगा। पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि रट्टा मारने वाले कंसेप्ट ही नहीं थे, टीचर्स ही नहीं थे, कल्चर ही नहीं था, ऐसा कोई कल्चर नहीं था। बच्चे समझते थे, बच्चे पास होते थे। बच्चों को कभी आईसीए के अगेंस्ट ऐसे प्रोटेस्ट और ये चीजें होती नहीं थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तब पेपर चेकिंग गलत होता था, बट इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। उस जमाने में कैसे लोग पास होते थे? चलो ठीक है, सिलेबस का लेवल कम था, एग्रीड, बट छुट्टी भी नहीं था हमको। सारे के सारे पेपर बैक टू बैक, आज एक पेपर, कल दूसरा पेपर, परसों तीसरा पेपर, एक दिन का छुट्टी भी नहीं था, एमसीक्यूज भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था ना। तो वो भी फैक्टर आप कंसिडर करो ना, तो तभी पे पास हुए ना लोग। तो ऐसा है कि अब लोग पहले पास ही नहीं होते थे, बिना रट्टा के लोग पास ही नहीं होते थे। रट्टा का कंसेप्ट अभी आ गया सीए कोर्स के अंदर, पहले नहीं था। लॉस तो पहले भी था ना, पहले भी लोग सीए बनते थे ना। तो आपको ये समझना है, आपको जो थॉट प्रोसेस बेचा जा रहा है ना, इट्स अ प्रोपेगेंडा दैट इज बीइंग सोल्ड। बिकॉज इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू विद द डेप्थ, I try to find out some memory technique. Like today, आज का economics का Heckler-Ocean theory and new trade theory, understanding the impact of factor endowment and how factor endowment can help a country, is not a concept that can be understood by रट्टा formula. अगर आपको ये समझ गया और आपको सिर्फ एक बार एग्जाम के पहले आपने चपड़ा, हाँ, Heckler-Ocean theory के अंदर ये दो ट्रेड थियरम्स है, and this theory focuses on factor endowment, and that is how I need to write a question on the factor endowment. आप लिख पाओगे यार? चिराग को कोई ऐसा नहीं हुआ था ना, उसने रट्टा मार लिया और लिखा। हमारे टाइम पे भी ये तुमको लगता है? हमारे टाइम पे भी था, सिर्फ नाम अलग था, MICS था, नाम बदल, इंस्टीट्यूट ने नाम बदला है बस, कंटेंट अंदर का जो टॉर्चर करने का तरीका वो सेम था। तुम्हारे टाइम पे ऐसे है, हमारे टाइम पे AAS था, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। वॉल्यूम बढ़ गया तो मैंने आपको वॉल्यूम का बाकी चीजें बोली ना आपको। तो ऐसा नहीं कि पुराने जमाने था। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ स्ट्रेस एंड अ प्रेशर। अब आप सोचो, आप कौन सा सिचुएशन में हो? प्रेशर इज टू मच ऑफ होमवर्क और टू मच ऑफ सब्जेक्ट्स, टू मेनी टेस्ट, लॉन्गर वर्किंग आवर्स, लेसर टाइम पीरियड टू प्रिपेयर, दैट इज अ प्रेशर। स्ट्रेस इज व्हाट? I can't cope up with the volume of syllabus. CA is not my cup of tea. I'm gonna fail for sure. When we exercise too much of pressure, when we experience too much of pressure and we feel unable to cope up with it, that results into a stress. My friend, majority of you are in a situation of pressure. You're not in a stress. Unnecessary आपको लग रहा है वो stress है। सिर्फ क्या है ना, टाइम अवेलेबल और उसके कंपैरिजन में जो चीजें खत्म करनी है उसका इक्वेशन परफेक्ट नहीं है, बट अचीवेबल नहीं है। ऐसा नहीं बोला मैंने, अचीवेबल है ना, आराम से अचीवेबल है, आराम से अचीवेबल है। तुमको ये पूरा इको का बुक, इको किधर गया? हाँ, इको का पूरा बुक, क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट बुक मिला के, कंसेप्ट बुक तो चलो बहुत सारा पेजेस, कितना 240 पेजेस है। 240 पेजेस में भी कितने सारे पेजेस में क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने सारे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए तुमको कॉन्सेप्ट समझ गया। तुमको क्या लगता है इको ये रट्टा मारना है? रट्टा मारने से अच्छा मैं 2 दिन या 3 दिन उससे अच्छे से पढ़ूं, 3 दिन के अंदर पूरा इको खत्म हो सकता है। कंप्लीट इको तो 3 दिन के अंदर, जिन लोगों ने टेस्ट लिखे वगैरह, आराम से 3 दिन के अंदर खत्म हो सकता है। तो इक्वेशन आपको क्या करना है? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर। इक्वेशन का बैलेंसिंग परफेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल थोड़ा सा गड़बड़ है,
तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, लेकिन आप अगर सोचो कि नहीं यार मेरे से ये हो ही नहीं सकता, अब मैं, जिन्होंने अच्छे से 2 ग्रुप के लिए अब तक प्रिपेयर किया, अब आप डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं मेरे को 2 ग्रुप ड्रॉप करना है, मेरे को एक ही ग्रुप पे आना है, देन it's different. Like you are giving up because of that pressure. Your pressure is converting into stress and you are giving it up. Look at this example. This fellow, अगर आपको failure चाहिए ना, देखो, Sujay Kane failed twice, November 2009 and May 2010 exam, CA final. Despite the 2 unsuccessful attempts, he did not give up. Next November 2010 attempt, he was all India rank 1. अगर तुमको रैंक ही चाहिए तो क्या था वो, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर प्रेशर और कोप अप विद दैट टाइम शेड्यूल और रिजिडिटी, वंस ही अंडरस्टूड दैट ही कैन क्रैक इट। तो वो आपको समझ लेना है। ये लाइन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए, बॉटम पे लिखा है मैंने, कॉन्फिडेंस इज नॉट व्हेन यू हैव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू आर रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तुम्हारे पास आंसर नहीं हो सकता, आर यू रेडी? परसों इको का पेपर दिया, बहुत कम बच्चे ने पेपर लिखा, क्यों? थियरी है यार, जब पढ़ेंगे ना बाद में देखेंगे ना, संडे लेट मी एंजॉय, आई एम नॉट रेडी। यू मस्ट बी रेडी। मैंने कहां पे बोला कि आपको 40 के 40 मार्क के, या जो भी 50 मार्क का पेपर था, 50 के 50 मार्क आपको आने चाहिए, ये बोला ही नहीं ना मैंने, आपको 50 के 50 मार्क आने चाहिए, 40 के 40 मार्क आने चाहिए। यू शुड बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस, बी रेडी, गो रॉन्ग, आई ट्राई टू आइडेंटिफाई, दैट इज वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स इन, absolute confidence that can come in. So just be prepared कि मुझे ये एग्जाम देना है, मुझ में ये कैपेबिलिटी है, आई एम प्रिपेयर्ड टू फिनिश दिस कंटेंट। सिंपल एक छोटी छोटी स्टोरी से, ये मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, एक विलेज था जहां पे पानी नहीं आ रहा था, बारिश नहीं हुई थी बहुत सालों से, तो उन्होंने प्रेयर करना सोच लिया, प्रेयर करेंगे हम भगवान की, मतलब बारिश दे, जैसे तुम भगवान को मांग सकते हो, भगवान मेरे को इंटर में पास कर दे। मत करना, उसके टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीएसटी नहीं था, उसका नहीं मालूम। हाँ, तुमको भगवान के भरोसे लास्ट डे, चलो ठीक है, हाय करके जाना उसको, वो ना तुम्हारी बुरा करेगा ना तुम्हारी अच्छाई करेगा, मतलब तुम्हारा ऊपर बिलीफ है, तुम चलो हर रोज पूजा करनी करो, बट वो एक्सेसिव उससे ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप मत रखो। तो इसलिए ये गांव वालों ने किया था, एक ही बच्चा था जो अम्ब्रेला लेके आया था, दैट वाज अ कॉन्फिडेंस कि यस अभी ये प्रेयर में हम करेंगे तो उसकी वजह से बारिश आएगा। यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, अगर मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर तुमको कॉन्फिडेंस ही नहीं तो कुछ काम का नहीं है। यू मस्ट हैव अ ट्रस्ट, सो हैव द कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटीज, हैव अ ट्रस्ट एंड नेवर लूज योर होप कि भाई हम पास नहीं हो पाएंगे। ये इंडिया का, मैंने आपको नहीं, भूषण पिछले बैच में बुलाया था मैंने, ही इज द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट from India in 2013 who is completely blind, visually challenged. He completed the exam. अब आप सोचो आपको उसको कितनी डिफिकल्टीज होती होगी वो बुक पढ़ने के लिए, क्यों? ब्रेल के अंदर बुक्स अवेलेबल नहीं है। इमेजिन करो उसने बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स कैसे इमेजिन किए होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे वर्किंग नोट्स कैसे सोचोगे, और वर्किंग नोट से बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना है कैसे सोचा होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। जस्ट विजुअलाइज करना, ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सीएफएस विदाउट इवन सीइंग अ क्वेश्चन। यार ये होल्डिंग कंपनी के एसेट में रहेगा, ये सब्सिडरी के उधर रहेगा, ये इंटर कंपनी होल्डिंग नॉक ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा गुडविल, अरे क्या कितना सोचना पड़ता होगा, एंड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन विदाउट इवन ट्राइंग टू सी। उसने क्या रहेगा, उसने कॉन्फिडेंस रखा कि मैं ये कर पाऊंगा। उसके लिए कोई ब्लाइंड है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, पेपर सेम रहता है। अपने पुणे में भी भूषण तोष्णीवाल करके बंदा है, उसके बाद बना था पिछले बैच, नवंबर 22 के बैच में उसको 26 जनवरी को बुलाया था, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है। तो उसने कुछ नहीं किया था, उसने ऑडियो टेक्निक ढूंढ लिया था, या मम्मी को बोलता था कि तू बुक पढ़ ले, मैं सुनूंगा थ्योरी के लिए, ऐसा कुछ ही। देयर इज नो अल्टरनेटिव ना, सिलेबस में कोई एग्जामिशन नहीं, सिर्फ उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पेपर लिखने के लिए, जस्ट दे गेट एक्स्ट्रा टाइम, नो अदर कंसेशन। पेपर चेकिंग में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, ना कुछ मिलता है। बच्चों ने दिया ना, यू नीड टू सेट स्पेसिफिक गोल्स। ये आपने स्मार्ट आर गायब हो गया उसका, सो ये स्मार्ट गोल्स तुमने एसएम में किए होंगे। फर्स्ट यू नीड टू बी स्पेसिफिक गोल। आई वांट टू पास इन May 23 एग्जाम इज नॉट अ गोल, इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। आई वांट टू पास कर क्या रहा है बेटा, गोल हैज टू बी स्पेसिफिक।
I want to finish accounts in 3 days. That's the goal. Then you come down to specific. I want to pass. Who wants to fail here? Anyone? जिसको फेल होना है हाथ ऊपर करो. Nobody wants to fail. Everyone wants to pass. But when you set a goal, it has to be specific. It must be capable of being measured in terms of something, some factor. So it must be measurable. If we cannot measure it, we cannot accomplish it. So for example, मैंने आपको index sheet दिया था to decide what questions you should revise, what questions you should not revise. ये जो बुक लेकर मैंने कुछ बच्चों के बुक लिए थे जिन्होंने इंडेक्स भरा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने इंडेक्स ही नहीं भरा हुआ है, और हर रोज मेरे को चैट बॉक्स से कल 2-3 दिन से बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रुप 1 के कौन सा क्वेश्चन पढ़ने के बोलो ना सर, क्योंकि खुद कभी इंडेक्स बनाया नहीं इन्होंने. क्यों? वो मेजरेबल है ना. वो यू सिंपली मेजर कि भाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट ब्रीफ में पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट को मैंने ब्रीफ में देखने के बाद मुझे ये क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहे हैं. दैट्स मोर देन इनफ. गोल मस्ट बी अचीवेबल. यू सेट अ टारगेट. Today morning till evening I want to finish entire EIS plus SM plus audit. It is not capable of being achieved. You set a target. चलो आज मुझे इको के 2 चैप्टर खत्म करने या इको के 3 चैप्टर खत्म करना. आई कैन अंडरस्टैंड 2 या 3 चैप्टर. जस्ट एग्जाम का दिन ऑब्वियसली आपको सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, बट तब तक आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारा बढ़ गया होगा. अगले 2 महीने में जो आप इंक्रीमेंटल पढ़ाई करोगे ना वो बहुत ज्यादा है. Goal must be realistic. A student who wants to finish revision of all subjects in 1 day is setting unrealistic goal, and they must be time bound. You must be able to finish everything by, let's say, 15th of April if you want to give exam in May 23. So finally what you need to do is important thing. दिमाग के अंदर जो फालतू का डिस्कशन चल रहा है ना, chatter in your mind, unwanted thinking is unhelpful. You just need to figure out how to ignore that थिंकिंग. बहुत सारी फालतू की चीजें चल रही होगी, 1707 चीजें दिमाग में आ रही होगी. ये ऐसे पढ़ो या वैसे पढ़ो, ये बुक रेफर करो, ये चार्ट रेफर करो. एक सोर्स ले, उसके ऊपर बिलीव कर बिगिनिंग टू एंड तक और उसको फॉलो कर. आराम से पॉसिबल है एग्जाम के लिए. राइटिंग प्रैक्टिस. अब आपने क्लास के अंदर बहुत सारे सम सॉल्व किए, यू माइट नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. अगर आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था तो आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए या थ्योरी क्वेश्चंस के लिए. क्वेश्चन बैंक ले लो या पास के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास है. अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, वो सब्जेक्ट्स के लिए आपने शायद क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. लॉ के लिए नहीं किया होगा या ऑडिट के लिए नहीं किया होगा, इको के लिए नहीं किया होगा, तो उतना क्या करना पड़ेगा तुमको. मैंने आपको बुक ऑफ हाइलाइट्स बोला था, बहुत सारे बच्चों मैंने शेयर भी किए थे बहुत सारे BOH आपके साथ. तो बुक ऑफ हाइलाइट्स को रेफर करना, उठाने का क्वेश्चन बैंक. ये क्वेश्चन बैंक उठाया मैंने, चलो चालू किया मैंने पब्लिक फाइनेंस के अंदर ये चलो मेरे को रिचर्ड मसग्रेव के फंक्शंस लिखना है, तीनों फंक्शंस लिखे, उसके बुलेट लिखे. राइटिंग प्रैक्टिस ही वो क्वेश्चन बैंक उठा के सेम क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस कर लिया. दैट इज मोर देन इनफ. ट्राई टू बी अ टीचर, ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स टू योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम. बी ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स. अगर आपका सच में स्ट्रेस में नहीं पॉसिबल है तो घर पे जाके बोल दो यार मेरे से 2 ग्रुप नहीं पॉसिबल है, मेरे को एक ही ग्रुप करना है. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टू द पेरेंट्स. असेस योर सिचुएशन. अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है तो देयर इज नो पॉइंट इन स्ट्रेचिंग इट फॉर द बोथ द ग्रुप्स. अगर आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा. फिजिकल हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तुम कब सोते हो, कब उठते हो, बॉडी को एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, तभी जाके आप कंसिस्टेंटली वर्क कर पाओगे. तभी जाके आप, अगर आप मुझे पूछोगे, मैं लगभग 6 महीने के अंदर मेरा स्लीपिंग टाइम का जो डेविएशन होता है वो हार्डली 4 to 5 days आई डेविएट, एंड दोज आर सम इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन अमेरिका, और वो मेरे रात में देखना पड़ता है मेरे को लाइव. बस वो इवेंट्स हो तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं कब मेरा सोने का टाइम डेविएट हो गया या कभी उठने के लिए मेरे को अलार्म का जरूरत पड़ा. क्यों? बॉडी का एक क्लॉक होता है खुद, वो आप सेट कर दो ना. आप कभी भी उठोगे, कभी भी पढ़ाई करना चालू करके नहीं चलेगा. यू नीड टू सेट वॉट एवर यू वांट टू स्टडी, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, दैट यू फाइंड आउट एज पर. बट वो हैबिट आपका ठीक होना चाहिए. कुछ भी करो, दोपहर 2 से 5 सोने की हैबिट मत डालो. पेपर का टाइमिंग वही है मेरे हिसाब से, तो 2 से 5 कुछ भी करके आपको ये नहीं चाहिए. सो external environment disturbances
एक्सटर्नल एनवायरमेंट कितने, मैंने आपको शुरुआत में बोला बहुत सारे एनवायरमेंट डिस्टर्बेंसेस है, इग्नोर करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको उसके ऊपर. नाउ आई विल हेल्प यू आउट विद द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी पुल अप. सो मैंने क्या किया यहां पर, सारे सब्जेक्ट का इंडेक्स यहां पर लिया है और मैं आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन करना चाहता हूं कितना टाइम लगेगा. जस्ट अ सेकेंड. देखो, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द अकाउंट्स. I'm just explaining broadly how many hours are required, and then we'll translate into days, and then we'll see, including other 4 subjects also, how much time do I need, और उसमें कहां पर फोकस करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका बोलता हूं मैं. क्वेश्चंस जो अकाउंट का बुक किधर गया, हाँ मिल गया. सो जस्ट लुक एट इट. पहला वाला चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन. उसमें क्या करना है मालूम है, सिर्फ ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज, वहां पर मैं नीचे एग्जाम के क्वेश्चंस दिए, कुछ थियरी क्वेश्चंस है और कुछ एग्जाम आरटीपी. तो यहां पर आपके बुक में QRM सीरीज है, आपके एप्लीकेशन पे आपके इसके आंसर्स है. आई एम ओनली टॉकिंग विथ रेफरेंस टू एकत्वम नोट्स. सो जस्ट QRM करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है. सो बेसिक क्वेश्चन है यहां पर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन एलिमेंट्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हु आर द यूजर्स. अगर एक आधा क्वेश्चन 5-5 मार्क का आता है, मतलब अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 5 मार्क का क्वेश्चन आते रहता है. गोइंग कंसर्न है या नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं तो क्या होगा, 5 बोनस मार्क है. दिस इज गोना कम एवरी एग्जाम. इंडेक्स देखोगे तो हर एग्जाम में 5 मार्क का आया है, कभी कभी 10 मार्क का आया है. 5 से 10 मार्क के लिए वेटेज है. तो यू शुड नॉट मिस दैट 5 to 10 मार्क्स. QRM करना है, और हाँ QRM के अंदर सब कुछ कवर्ड है, क्वालिटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक, मेजरमेंट, डिसिप्लिन. बस QRM. कितना टाइम लगेगा इसका सारे चीज पढ़ने के लिए? यू शुड नॉट गिव मोर देन 1 hour. इधर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नथिंग. बोनस 5 मार्क्स. मोस्ट निग्लेक्टेड चैप्टर इन द एंटायर सब्जेक्ट. क्यों? बेसिक्स है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देगा और नीचे बोलेगा इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, how will the finance prepare P&L and balance sheet. So you have to show assets at net realizable value. P&L में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा. AS1 सिर्फ 15 मिनट में आपको पढ़ना क्या, 2 ही चीजें पढ़नी है यहां पर. एक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और दूसरा क्या था बच्चों, कंसिडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. 2 पॉइंटर्स पढ़ने बस. कंसिडरेशंस थियरी के लिए इतना ही पढ़ना है AS1 के अंदर तुमको, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है. क्या कंसिडरेशंस है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, मटेरियलिटी है, प्रूडेंस है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ लिए, जस्ट टाइटल्स पढ़ लिए, दैट इज मोर देन इनफ. एंड देन इमीडिएटली यू शुड ट्राई टू गो थ्रू व्हाट, QRM का ऑडिट. सॉल्व भी नहीं करना है, QRM ऑडिट. QRM ऑडिट मतलब सॉल्विंग नहीं चाहिए मुझे वहां पर जस्ट आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है. अगेन मोर देन 1 hour इज इनफ. 1 hour आपका पूरा रिवीजन के लिए. मतलब लास्ट डे को आप इनका टाइम कम कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द लास्ट डे, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, ओवर द नेक्स्ट 2 months आप कितना टाइम उसको डिवोट कर सकते हो. AS2, हाँ यस, इधर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, बहुत वैरायटी के साथ आता है. तो हियर व्हाट आई वांट इज अ फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जिसके ऊपर नॉर्मली बच्चा माती खाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड देन वैल्यूएशन ऑफ WIP. याद होगा तो इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. बट वो NRV कैलकुलेट कैसे करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है WIP एज वेल एज रॉ मटेरियल के लिए. यू नीड टू लुक एट finished goods in which that raw material is used. Is it gonna be sold above the cost or is it gonna be sold below the cost? ओवरहेड का ट्रीटमेंट वहां पर अंडर अब्सॉर्प्शन, ओवर अब्सॉर्प्शन को आप ट्रीट कैसे करोगे. इफ यू especially for a fixed overhead, variable overhead are absorbed over a quantity produced, but a fixed overheads were spread over normal capacity.
इफ योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ तो भी चलेगा, इट्स ओके। आई जस्ट सी अभी आप सोचोगे अरे मेरे को तो कोई रियलाइज नहीं हो रहा, ठीक है ना, आप बुक पढ़ोगे ना, कंसेप्ट बुक लेके चालू करोगे, आराम से हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड्स में इंट्रोडक्शन या जो इंट्रोडक्टरी कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपने कॉन्सेप्ट बुक पढ़ना शुरू करना है। यहां पे कॉन्सेप्ट बुक के साथ जाना ही पड़ेगा आपको, यू नीड टू गो कंपल्सरी कॉन्सेप्ट बुक, बट कॉन्सेप्ट बुक के अंदर आई डोंट वांट यू टू वेस्ट अ टाइम ऑन इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, हाउ इज ए इन्वेंट्री वैल्यूड। आपको वो भी उतना मालूम है यार कि इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स है, फीफो वेटेड एवरेज, वो सिर्फ टाइटल पढ़ के आपने आगे जाना है। तो जो पॉइंटर्स आपको परेशान करेगा ना उधर आपको रेफर करना है। एंड देन कुछ क्वेश्चंस है अब इसमें, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेपीबीपी का ट्रीटमेंट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आ गए तो उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, याद होगा तो। और अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम के देता हूं, जो हमने पूरा एग्जाम का क्वेश्चंस किया था, रिवीजन के लिए आपको इंक्लूड करने हैं कंपल्सरली। आई एम रेफरेंसिंग दिस क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू व्हाट, नोट्स। नोट्स के अंदर पुणे 13 देखना ही है कंपल्सरीली, देन क्यू सीरीज, क्यू सीरीज सारा कवर करना है, Q2 Q3, देन यू हैव Q5 एंड Q6। ये क्वेश्चंस आपने गो थ्रू करने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपने गो थ्रू कर लिए, इवन इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चंस ना, हाँ एंड P25 आई फॉरगॉट, 25 नंबर आपने गो थ्रू करना है। 13 नंबर लिखा ना मैंने, हाँ लिख दिया। कितना टाइम दोगे आप AS2 को, 2 घंटे AS2 को दे दिए। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत डिटेल में स्टैंडर्ड है ये, डायरेक्टली इसके बेसिक प्रिंसिपल्स 2 या 3 पॉइंटर्स सिर्फ पढ़ना है इसके अंदर। पढ़ना है क्या आपको, मैं बोलता हूं रिकॉग्निशन के और कॉस्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट, कॉस्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट, आप क्या वैल्यू पे असेट को दिखाओगे इनिशियली, इट इज गोना बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट देयर आर स्पेसिफिक एलिमेंट्स, देयर आर स्पेसिफिक हेडिंग्स which are gonna come in the question. These specific headings you must remember, there is no choice. Then the specific headings and revaluation का treatment, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट किसके आएगा, ऊपर आएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के कौन से चेंजेस, प्रोस्पेक्टिव चेंज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट रिट्रोस्पेक्टिव चेंज, कुछ करना ही नहीं है, बस यू शुड गो ओनली थ्रू दैट मच, क्योंकि बाकी पूरा AS10 करने जाओगे ना कोई ROI नहीं मिलने वाला आपको। सारे के सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर रहेंगे मालूम है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना है और कॉस्ट में क्या एक्सक्लूड करना है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। सो AS10 के अंदर आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू Q सीरीज, Q1 to Q5 ऑल 5 क्वेश्चंस, रिपीटिशंस आता इधर, Q1 to Q5, then important one P27, P27, P27 नहीं लिखा के ठीक से, P27, P25 ये था बस। AS10 को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए 2 घंटा दे सकते हो, इधर भी AS11, हाँ इसमें कहां पे बचेगी आपकी, यू नीड टू फोकस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोर एंड बोथ फॉरेन ऑपरेशन। नॉर्मल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंस लेना चाहिए, वो तो बच्चे बच्चे को भी समझते रहे। प्रॉब्लम कहां पर आएगा, यहां पर फॉरेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट फॉरेन ऑपरेशंस। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ब्रांच, सो देयर इज अ फॉरेन ब्रांच, आपको ट्रायल बैलेंस देके रखा है ब्रांच का, वो इंटीग्रल ऑपरेशन है या नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है वो चेक करो। कुछ आइटम्स HOK बुक्स के हिसाब से लेने पड़ेंगे आपको, कुछ आइटम्स को आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ 46A, expect a question on para 46A. Para 46A will allow you treatment whether you want to debit amount of exchange difference to a account called as a foreign currency monetary item translation difference account,
और यू वांट टू डेबिट इट टू द असेट इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है. एंड क्वेश्चंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के स्पेक्युलेशन वाला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली मोर इन द नेचर ऑफ स्पेक्युलेशन. अब क्वेश्चंस, अब मैं आपको जो नंबर्स लिख के दे रहा हूं, am I expecting you to solve only those questions? No, I'm not expecting you to solve. Even if you can do audit और आपको टाइम मिल गया उसके बाद, चलो आर सबके मतलब टाइम बाकी है, you should go through the other questions also. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास बुक में नोटबुक में आपके रहेंगे, तो यहां पर क्वेश्चंस लिख के रखना. P1 ये आ गया आपका. सो P3 P6 P7 ये है, और Q सीरीज में Q1 to Q5 सारे के सारे करना है. हाई प्रोबेबिलिटी वाला आइटम है ये. 2 घंटे के अंदर AS11 खत्म होगा. गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें सिर्फ एक चार्ट बना के दिया था मैंने, चार्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट, चार्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट, ट्रीटमेंट ऑफ रिसिट. एंड क्वेश्चन आएगा ना तो किसके ऊपर आएगा? रिसिट के ऊपर नहीं आएगा, रिफंड ऑफ ग्रांट के ऊपर क्वेश्चन आएगा. refund of grant and consequent impact on depreciation depending on which method you applied for accounting of grant. Receipt of grant can be credited either to asset account or can be credited to deferred grant. There are two approaches, gross approach and a net approach. Refund of grant and consequent depreciation. इसके ऊपर फोकस किया. Should be 1.5 hour, more than enough for revising this. यही बोल रहा हूं, शुरुआत में अभी आप चालू करोगे. व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ग्रांट, क्या करने का भी तेरे को? वो टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. सो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट गोना कम, व्हाई डू आई वेस्ट माय टाइम ऑन दैट? जस्ट रिसीट ऑफ ग्रांट देख ले एक बार. तो कॉन्सेप्ट बुक आपके सामने रखना चाहिए आपने, और उसको गो थ्रू करना चाहिए. कितने क्वेश्चंस करना है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. मैं आपको बोलता हूं, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू नंबर 1 P3, then P6 कवर किया है, P7 है, P8 है, और Q वाले तो छोड़ने ही नहीं चाहिए आपने. Q1 to Q5. Borrowing cost. Expect a question on para 4E, where you have to find out the difference between interest rate if you would have taken loan in India and interest rate if you taken a loan in foreign currency. और कुछ amount आपके P&L को डेबिट होता है as interest cost, और कुछ amount जाता है as a exchange difference under AS11. If you choose para 4E, you cannot choose para 46A. Both are always mutually exclusive. So I want para 4E. Then I want qualifying asset का definition. क्या qualifying asset में included है, क्या नहीं है? यहां पर बहुत सारे assumptions थे. आपको याद होगा तो ट्रक परचेस, शेड परचेस, मशीनरी परचेस, कभी क्वालिफाइंग था, कभी नॉन क्वालिफाइंग था. तो वो क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस है, ऑप्शन नहीं है. और इसके अंदर सेसेशन का कंसेप्ट, सेसेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मतलब अभी कैपिटलाइज नहीं होगा, वर्सेस सस्पेंशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कि एक टेम्पररी पीरियड होता है जहां तक आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो. वो देखना है. एस 4E का मैंने कंप्लीट बोला था आपको. एंड देन क्वेश्चंस जो करने हैं वो बोलता हूं. P3 एम्बिगुअस क्वेश्चन वाले है ये. देन P2 परचेस ऑफ मशीनरी एडवांस. हाँ, P10 अभी आपको मैं अलग अलग ऑप्शन वाले दे रहा हूं. P10 नहीं, सॉरी P5 है, वो P5 है. फॉरेन करेंसी के ऊपर आपको आएगा P7. फॉरेन करेंसी लोन लेके रखे बहुत सारे मैंने. और पैरा 4E के पे मैंने एक डिक्टेट किया रहेगा, डिक्टेटेड एक रहेगा आपके बुक में.
पैरा 4 के ऊपर एक डिक्टेटेड क्वेश्चन रहेगा, P14, पैरा 4 के ऊपर है, P13 या 14, मैंने कौन सा सॉल्व किया गया याद नहीं मेरे का, दोनों सेम ही है, 13/14, दोनों में से एक देख लिया तो भी चलेगा। एंड देन Q1 to Q3, ये क्वेश्चन देख लिया, AS16 को जाएगा 2 घंटा। तो टेल मी व्हाट इज द टोटल दैट वेंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कितना टाइम गया आपका पूरा एएस को? 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11.5, राउंड ऑफ टू व्हाट 12 hours. So it can be a 1 day's job, something like, क्योंकि यहां पर marks, please remember the very first question that you are gonna solve in intermediate is gonna be accounting standard. अकाउंट्स फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन एएस का रहेगा, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना चाहते हो तो। हाँ वो है। अब AS13 आ गया, अब ये न्यूमेरिकल वाले चैप्टर आ गए, यहां पर टाइम है ना तुमको प्रोपोर्शनेटली कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? कि नंबर, इट्स अ सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही बार ट्रांजैक्शन डिटेल्स का वर्किंग नोट देखना है बॉन्ड्स के लिए। ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट अ टाइम, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ यू डू इन्वेस्टमेंट, हाउ यू कैलकुलेट YTM, जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट अवे गया मैं, बॉन्ड का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई किया, फिर मुझे वैल्यूएशन लर्न करना है, ईयर एंड पे मैंने वैल्यूएशन कैसे किया है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू कुछ आइडेंटिफाई करना है, ब्रोकरेज सबसे बड़ा सताने वाला आइटम था, याद होगा तुमको, तो वो कौन से प्राइस पे कैलकुलेट किया है वो ब्रोकरेज देखना है, एंड बोनस डिविडेंड ऑन बोनस ऑब्लिक राइट इशू, उन पे मिलता है या नहीं मिलता है वो देखना पड़ेगा, एंड प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ राइट, प्रोसीड्स ऑफ व्हाट, सेल ऑफ राइट। नॉर्मली कहां पे जाता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाता है, लेकिन कभी कभी वो जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, इफ यू शेयर्स वेयर परचेस ऑन कम राइट देन आई वांट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, reclassification of investment, current to non-current, expect a question on this, current to non-current वाला item, current to non-current, good number of questions can come up. Then sums जो है ये है आपके कुछ questions है, P3 P6 P11 P13 P21 Q2, इसमें इक्विटी भी आ गया है और बॉन्ड्स भी आ गए। ये क्वेश्चंस आपने देख के रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट बुक ब्रीफली रिवाइज करना है, ज्यादा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये पूरे चैप्टर को आप दे सकते हो कहीं पे, 2 काफी है एक्चुअली, 3 भी जरूरत नहीं है। तो आज सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व करने जाओगे आप you will not be able to finish the syllabus. अगर आपको पूरा अकाउंट सॉल्व करके देखना है, FM कॉस्ट, हाँ एक ही ग्रुप दे रहे, बात अलग हो सकती है, लेकिन नहीं, इंश्योरेंस क्लेम, इसको तो मेजर फोकस शुड बी ऑन स्टेप्स, डायरेक्ट स्टेप्स फॉर बोथ, फॉर स्टॉक एंड फॉर व्हाट, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। बस स्टेप्स समझ लो कॉन्सेप्ट बुक से, ये स्टेप्स है ना, ये कहां से गो थ्रू करोगे आप, कॉन्सेप्ट बुक से स्टेप्स गो थ्रू करोगे, और स्ट्रेट अवे एक बार स्टेप कर लेना, क्वेश्चंस के ऑडिट के ऊपर लग जाना, पूरा का पूरा ऑडिट पे लग जाते हो आप। ऑडिट के लिए यहां पर क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कवर अप कर सकते हो आप। और ये चैप्टर्स, ये ना बी क्लाइक का ब्लॉक, इंश्योरेंस, हायर परचेस एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला ब्लॉक है ये। टाइम रिक्वायर्ड दैट यू विल, आप या यहां पर मैंने आपको एक रिवीजन लेक्चर दिया था 25-25 मिनट के, यू कैन गो थ्रू अ रिवीजन एंड देन गो थ्रू द प्रॉब्लम्स। ये एरिया फोकस करना है, इन तीनों पे आप रिवीजन लेक्चर्स फोकस कर सकते हैं। सिंपल रिवीजन है, मेरे हिसाब से 25 मिनट में रिवीजन खत्म हुआ है सबका, एवरेज 25 मिनट्स। हाँ तो रिवीजन कंपल्सरी देखना इधर, वो तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया था, यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, वो तुम्हारा ढूंढ लेना। अब मुझे चाहिए यहां पे हार्डली फ्यू क्वेश्चंस, P4
P14, P24, 25, 26 एंड 28। 2 घंटे के अंदर आराम से आप इन क्वेश्चंस का ऑडिट करवा सकते हो। हायर परचेस, स्ट्रेट अवे मैं कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस देखूंगा एक बार। यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट। इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन इज अरिथमेटिक्स। रिवर्स वर्किंग करना पड़ता है, कभी कभी आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर आपने बोथ ग्रुप अभी किया होगा तो आईआरआर अभी कुछ लगेगा भी नहीं आपको, तो सिर्फ देख के भी आपको समझ में आएगा कि आईआरआर आता है भाई। एंड मैं जाऊंगा फिर रीपोजेशन अकाउंटिंग, मतलब रीपोजेशन अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन जो आएगा ना, तो रीपोजेशन के ऊपर आएगा। जस्ट हायर परचेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। रीपोजेशन के ऊपर भी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए आपका, पार्शियल रीपोजेशन। तो इधर भी तुमने क्या करना है, वीडियो देखना है। वीडियो देख के कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। कितने, P1, P3, P4 ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, और ये 11, 15, 20 ये रीपोजिशन वाले हैं। Q2 भी रीपोजिशन का है। रीपोजिशन के क्वेश्चन देखे, ये 2 घंटे गए आपके, मतलब ये तीनों चैप्टर मिला के आपका कितना टाइम गया, 6 आवर्स कैटेगरी बी के लिए। प्लस माइनस हो गया उसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उस दिन आप कम सो तो 12, यू शुड बी प्लानिंग अबाउट अ डे ऑफ 14 आवर्स। अब डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और एक घटिया क्वेश्चन किया था, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट वाला क्वेश्चन। ये 15 मार्क आ गया तो मतलब ये जान ले सकता है तुम्हारी। यू शुड लुक, इन माय ओपिनियन, फॉर रिवीजन ब्रांच यू शुड फिनिश फर्स्ट एंड देन यू शुड गो फॉर डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप पहले डायरेक्ट डिपार्टमेंट पे गए ना, तो वो इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक का कैलकुलेशंस के लिए मुश्किल हो सकता है। तो डिपार्टमेंट के अंदर मैंने आपको एक टाइप बना के दिया था, एंड में याद होगा तो मैंने समरी दिया था टाइप्स का। प्रॉब्लम्स जो थे ना, सारे प्रॉब्लम्स को मैंने क्लासिफाई करके लिख के दिया था, कौन सा प्रॉब्लम कब पढ़ना है। अरे एक आपके नोटबुक में एक शीट दिया था, मैंने बना के दिया था ऐसे ऐसे टाइप का, हर टाइप में से कितना क्वेश्चन नंबर रेफर करना है। सो रेफर प्रॉब्लम्स टू बी रिवाइज्ड, वो मैंने खुद उस टाइम पे बना के दिया था। कॉमन सेंस टाइप वाले क्वेश्चंस थे, कुछ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाले क्वेश्चंस थे, टाइप बना के दिया था, और कौन सा टाइप में कौन सा एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है, और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को मैंने इग्नोर करके दिया था। ब्रांच क्वेश्चन आएगा ना, फॉरेन ब्रांच, ये ज्यादा फोकस वाले एरिया बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दीज आर द एरियाज ओनली टू बी फोकस्ड। फॉरेन ब्रांच एंड देन ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। याद होगा मल्टीपल लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते थे फालतू के, टू गेट द सेम प्रॉफिट लॉस एज वी कैन गेट बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच के स्पेशली रिकंसिलिएशन वाले क्वेश्चन। अब ब्रांच के अंदर क्वेश्चंस बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा थे, तो आपको रिवीजन के लिए भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस है यहां पर। P5, 11, 12, 16, देन ये है 20, 21। ये मेजर क्वेश्चंस मैंने यहां पे कवर किया। ब्रांच के लिए लगभग 5 घंटे दे सकते हो आप, और 2 आवर्स फॉर व्हाट, डिपार्टमेंट। 2 आवर्स के अंदर डिपार्टमेंट होता है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये पूरा आपका, इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग यू आर। P21 सिंगल एंट्री, जितना टाइम दोगे उतना कम है। कंसेप्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस है ना वो गो थ्रू करना है। कितने भी क्वेश्चंस करो आप, फायदा नहीं। मैं डायरेक्टली यहां पे क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं। यू शुड ट्राई टू ऑडिट
as many questions as possible. प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसका, एज पॉसिबल, क्योंकि यहां पर पूरा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड भर भर के मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूं. P1, 4, 10, 18, 23, 24, 24 कुछ मार्क करके दिया. एंड क्यू सीरीज, इसको 4 घंटे देना कम से कम. 4 नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम देना. ज्यादा क्वेश्चन कवर हो गए ना तो आपको इसके ऊपर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा. ये 12 घंटे का सेक्शन हो गया. दिस इज 12 आवर सेक्शन. कंपनी फाइनल अकाउंट, आई वॉन्ट फोकस ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. स्ट्रेट अवे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे आए. कैलकुलेशंस कैसे करना है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के, वो देख लिया. डिविडेंड के ऊपर का रूल्स करने हैं. डिविडेंड के रूल्स पढ़ लिए तुमने. एंड देन जस्ट वन क्वेश्चन ऑन शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, जितना डिटेल में शेड्यूल 3 आपको ऑडिट में आएगा उतना डिटेल नहीं है यहां पर. शेड्यूल 3 का क्वेश्चन आ गया, एंड में ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. शेड्यूल 3 hours आर मोर देन इनफ फॉर कंपनी फाइनल अकाउंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट. अगेन यहां पर भी कोई ग्रेट कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑडिट क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव मार्क्ड. फोकस किस पे रहेगा, फोकस रहेगा फॉरेन करेंसी आइटम. सबसे एंड में क्वेश्चन क्या रहेगा कैश फ्लो का, फॉरेन करेंसी आइटम दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर income expense or can be part of your cash and cash equivalent. If it is a part of cash and cash equivalent, उसका सेपरेट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करना पड़ता था कैश फ्लो के अंदर. अब कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं आपको. सो P7, P14, P18, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सिर्फ. 4 hours, 14, 1 गायब हो रहा है पेंसिल. 4 hours कैश फ्लो के लिए गए. प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अगेन हियर देयर इज नो कॉन्सेप्ट. यू नो एक बार क्या करना है, सिर्फ ऑडिट नहीं, रेशोस पढ़ने. रेशो फॉर अपॉर्शनमेंट पढ़ लिया तुमने. एंड जस्ट ऑडिट क्वेश्चंस. नाउ अगर किसी का इसके पहले अच्छे से अकाउंट का रिवीजन हो गया होगा, यू कैन रैप अप अकाउंट्स कंपैरेटिवली अर्लियर. प्रॉफिट लॉस 1 hour, बोनस इशू राइट इशू 1 hour. इसमें क्या पढ़ने जैसा है, कुछ नहीं है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस 2 hours. सेक्शन 55 का एक चार्ट देखना है बस. इनमें से आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन है बोनस इशू राइट इशू में. नंबर ऑफ क्वेश्चन इटसेल्फ आर लेसर. हाँ, राइट इशू इंपॉर्टेंट. बोथ द आंसर्स. राइट इशू में वैल्यू ऑफ राइट, मैंने एक आईसीआई का वर्जन बोला था, मेरा वर्जन बोला था. एग्जाम में दोनों प्रेजेंट करके आना. प्रेजेंट बोथ द व्यूज. डिबेंचर्स दिमाग खाने वाला है आपका. डीआरआर का अकाउंटिंग एंड डीआरआर के परसेंटेजेस याद रखना. जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे ना, मेरे हिसाब से हमने पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया था इस क्वेश्चन चैप्टर के लिए. 2 hours इधर पूरा मॉड्यूल करना है. ओनली मॉड्यूल क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हमने सॉल्व किए, करवा के लिए थे. हाँ, एंड जर्नल एंट्रीज फॉर ओन डिबेंचर्स. कितना टाइम गया है तुम्हारा इसमें? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10, 3, 13 घंटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गए. अब बोलो 13 + 12 + 6 + 12, बोलो कितना हुआ? 43 hours. अगर आप 12 घंटे के हिसाब से पढ़ना चालू करते हो, 12 से 14, आपका बैकलॉग ज्यादा है, आप 14 पे जाइए. आपका सिचुएशन थोड़ा अच्छा है, आप थोड़े नंबर ऑफ आवर्स कम कर सकते हो.
सिचुएशन अच्छा है तो, लेकिन फालतू का रिस्क मत लेना. 3 to 4 days is more than enough for the accounts. Now, I'm not saying should you go entire day with accounts. वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए. मिनिमम 2 subjects you should take up, या 3, 2 to 3 पर डे. एक सब्जेक्ट डेंजरस स्ट्रेटेजी है, एक सब्जेक्ट का 2 से 3 सब्जेक्ट. तो मैं प्रेफरेबली क्या प्रेफर करूंगा मालूम है? आई विल कीप 2 subjects each of 6 hours, that is 12, and 1 hour for revising whatever you finish recently. Like say for example, right now you finish eco recently, so you keep a hour for what? Revising that eco. 5-6 घंटे आपने अकाउंट्स पढ़ लिया, या 6 घंटे अकाउंट, 6 घंटे कॉस्टिंग कर लिया, 6 घंटे अकाउंट्स किया, लॉ किया, वैसा करके आप आना चाहिए. मैं अभी कॉस्टिंग के लिए सिर्फ आपको ब्रॉड बेसिस पे आवर्स दे रहा हूं. कॉस्टिंग के लिए मैंने जितने रिवीजन के सेशंस लिए थे वो रिवीजन के सेशंस ब्रीफ में देख लेना. वो कॉस्ट शीट है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड कॉस्ट शीट बोथ पुट टुगेदर 2 hours इनफ है. 2 hours भी 2 भी नहीं जरूरत है. हाँ, प्रॉब्लम देख के 2 ठीक है. कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम पुट टुगेदर 2. मटेरियल कॉस्ट नॉट मोर देन 3. लेबर 2. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बियॉन्ड दैट. मैंने मटेरियल लेबर का आपको पीडीएफ दिया था रिवीजन का, उसमें 4-5 ब्रॉड पॉइंटर्स दिए थे, इनफ. उसके आगे कुछ देखो ही मत. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है आपको. अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट, मशीन आर देख के 4. एबीसी 3 hours. आरओआई हाई है. एबीसी में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑडिट करना. एक लिस्ट दिया था पूरा आईसीआई के एग्जाम के क्वेश्चंस का. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लेजर, एक जर्नल एंट्रीज दिया था और एक फ्लो चार्ट दिया था पूरा. हाउ द एंट्रीज फ्लो फ्रॉम मटेरियल अकाउंट टू द कॉस्ट लेजर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो फ्लो 3 hours. जॉब कॉस्टिंग, ये पूरा चैप्टर क्या था? कॉस्ट शीट था, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको बैच कॉस्टिंग के लिए ईओक्यू का फॉर्मूला वापस देखना पड़ता था. इट वाज बेसिकली ईओक्यू फॉर्मूला विच नीड टू बी रिविजिटेड अगेन. 2 hours. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इधर भी ऑडिट ही करना है. 2 hours इनफ है. प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 घंटे, क्योंकि सारे टाइप्स करना. सबसे डेंजरस अकाउंट फॉर अदर देन प्रोसेस 1, टाइप 2C था. They ask you process 2 account या process 3 account, something other than process 1. And degree, there are 2 materials, material A, B. ऐसा आपको मटेरियल के अंदर बाइफर्केशन करना पड़ता था. जेपीबीपी 3 hours. सर्विस सेक्टर 2 घंटे काफी है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, 5 to 6 hours. ओवरहेड्स डीप में करना. I am expecting a question on control ratios. Institute has increased number of ratios. मैंने लेक्चर में भी बोला था, रिवीजन के अंदर भी मैंने वो करवा के लिया था ज्यादा रेशियोज. Expect a question on the control ratios for your attempt. ICA has amended the study material completely. Control ratios के ऊपर and overheads का breakup. Overheads completely. Main variance is nothing but your under oblique over absorption, and then there is a breakup of overheads. Marginal should be around 5 hours. Expect a question on absorption costing versus marginal costing. Inventory valuation में difference आता है. Absorption versus marginal वाला question and key factor analysis. कोई तो factor आएगा जिसका restraint रहेगा और फिर आपको optimal production mix पूछेंगे. Budgets, इसमें theory करना, इसका थियरी आएगा. अब पूरे कॉस्टिंग के अंदर थियरी बहुत कम आएगा. मतलब मैं आपको एक थियरी का बुकलेट शेयर करूंगा पीडीएफ में, आज आपके ग्रुप पे शेयर करके रखता हूं. थियरी यू शुड रीड समवेयर एट द एंड. मतलब जब आपका पूरा रिवीजन होगा तब जाके आप पढ़ना, या उसी चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी थियरी आएगा ना, तो वो आएगा फर्स्ट चैप्टर. और ये बजट कंट्रोल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उधर भी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट वगैरह चीजें थी. 3 बोलो. कॉस्टिंग के लिए टाइम कम लगेगा. 45 हो गया, 44. 2 3 5 नहीं रे. 5 2 7 4 11 3 14 3 17 2 19 2
21 4 23, 23 और 5 28, 6 34, 5 39 42. अगेन ब्रॉड बेसिस पे वही आएगा तुम्हारा. सो एडवांस को मैं अगर सारे स्टैंडर्ड्स पकड़ लूं वापस, आपने लगभग 20 आवर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देना चाहिए. एडवांस में स्टैंडर्ड का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1. स्टैंडर्ड्स डेडली भी है. ESOP 1 hour, buyback maybe 2 hours, basically because you need to go through the regulations first. buyback के regulations आपको देखने पड़ेंगे. DVR काउंटी मत करना. हाँ बट कंपल्सरी देखना. Every exam same question has come up. There is no different question. It's only one question that can be asked on it. Amalgamation, if you do, हाँ इसमें तुमको टोटल अमालगमेशन सारा पकड़ के 8 से 8 इनफ है. 8 घंटे देने पड़ेंगे आपको, ऑप्शन नहीं है. पूरा स्टेप्स समझना है. पीसी कैलकुलेशन वगैरह पकड़ के बात कर रहा हूं. रिकंस्ट्रक्शन 4 hours इज इनफ. लिक्विडेशन 3. बैंकिंग अराउंड 5 hours. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कंपल्सरीली याद रखना है, और एनपीए के परसेंटेज. ऑप्शन नहीं है. एग्जाम के दिन सुबह भूलना मत. कैपिटल एडिक्वेसी के मतलब कुछ भी आ सकता है यार, कोई भी एसेट आइटम आ सकता है. यू नेवर नो. 5 एनबीएफसी 1 hour. एनबीएफसी में भी परसेंटेजेस अलग अलग लगता है. एक चीज भूलना मत, नेट ओन फंड्स ऑफ एनबीएफसी, उसका कैलकुलेशन पूछ रहे थे नेट ओन फंड्स का. सीएफएस शुड गो अराउंड 10 hours. अमालगमेशन 10 hours लगेगा सीएफएस को. अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ अ फर्म, इसमें कोई भी पार्टनरशिप की इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था. इट इज जस्ट फ्यू क्वेश्चंस दैट यू नीड टू ऑडिट. 5. अब मुझे बोलो क्या हालत है अकाउंट्स का, एडवांस का. नहीं किया. 10 नहीं उतना नहीं देना चाहिए. 64 कैसे हुए. हाँ अकाउंटिंग 5 5 10 20 21 64 हो रहा है. नो, shouldn't go to 64. You need to stretch it down to around 55. 50. अगर आपने रिसेंट के अंदर आपने पढ़ाई, आई एम अज्यूमिंग अ वेरी लो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक्सट्रीमली लो डिग्री ऑफ कंप्लीशन. 55 is more than enough. अब इंट्रोडक्शन टू एफएम 2 hours थियरी क्वेश्चन आएगा. टाइम वैल्यू अपनी पढ़ना ही नहीं है. रेशो 4 hours. कैश फ्लो है नहीं सिलेबस में. लिवरेज 1. क्या बोले. इंट्रोडक्शन टू एफएम 2 hours. I'll share this PDF also, na? Ratio 4. Leverage 1 hour. Capital structure including CST. Capital structure theories. Modigliani Miller. Next. देखो CST के अंदर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस थियरीज पुट टुगेदर 3 hours. इसमें आर्बिट्राज है. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन आर्बिट्राज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस है ना, पहले क्वेश्चन में आएंगे. इंडिफरेंस पॉइंट आएगा, आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन, मोडिग्लियानी मिलर वाला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने वाला क्वेश्चन, वो सब कुछ इसमें है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस 2. Capital budgeting other than risk analysis. NPV, IRR and replacement put together 4 hours. Risk another 4 nahi, risk 3 is enough.
डिविडेंड डिसीजन अगेन आपको वॉल्टर, गॉर्डन, मोडिग्लियानी, मिलर, लिंटर याद रखने पड़ेंगे. लिंटर वगैरह, गॉर्डन याद नहीं रखना पड़ेगा. लिंटर याद, वो तो ऑप्शन ही नहीं है यार, उस दिन पढ़ने के बिना बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है. वर्किंग कैपिटल, इसमें आपको कंपल्सरीली कैश कॉस्ट के अजम्पशंस प्रेजेंट करने हैं. तो शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स. इसमें एक चीज पढ़ना, डबल शिफ्ट कंपल्सरी पढ़ना ही है. एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में से करना है. डबल शिफ्ट वर्किंग एंड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. वो इतना इजी रहता है ऑपरेटिंग साइकिल, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है और फिर बोलता है कैसे मैं कैलकुलेट करूं. इट इज बेसिकली एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी 2 आवर्स. काइंडली रीड मिलर और. फालतू का ढेरी क्वेश्चन आता है. इन्वेंट्री नहीं पढ़ना है, मतलब अज्यूमिंग यू विल नो ईओक्यू. अकाउंट रिसीवेबल के अंदर फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस बार. फैक्टरिंग सही तरीके से लिखना. रिकोर्स, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, कितना परसेंट आपको लोन मिल रहा है. 4 आवर्स. अकाउंट पेएबल नहीं पढ़ा तो ये चलेगा. ये इसके लिए अलग से आवर्स देने की जरूरत नहीं. मैनेजमेंट ऑफ पे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं थे, सिखाने के लिए 15 मिनट गया था. 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16, 4 20, 2 22, 26, 29, 30, 34 and 36. 36, that's fair enough. Eco, national income 2, Keynesian theory 2, fiscal functions 1, market failure 2, government intervention to correct market failure again 2, fiscal policy भी 2, मनी डिमांड की थियरीज थे 2, मनी सप्लाई 2, मॉनेटरी पॉलिसी भी 2 लगेगा, अल्टरनेटिव नहीं है इसमें. थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे 2, ट्रेड निगोशिएशन WTO वाला चैप्टर 1 काफी है. एक्सचेंज रेट मैच, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है इसके ऊपर. क्रॉस रेट्स के ऊपर, क्रॉस रेट एंड रियल रेट. रीर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वाला. रियल एक्सचेंज रेट आएगा. इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट 1. कितना गया इको का? 24. नाउ इफ यू पुट अक्रॉस समरी, जो अकाउंट्स कितना था? 43. कॉस्टिंग 42. देन एडवांस. अब मैं आपको ओवरऑल स्टेटमेंट देता हूं. सर कैन यू प्लीज गिव एएस वाइज आवर्स? नहीं अरे वो मैनेज कर ले प्लस माइनस, क्योंकि ग्रुप 2 में तेरा कौन सा स्टैंडर्ड अच्छे से बना है उसके हिसाब से देख. एडवांस कितना गया था? 55. एफएम एंड इको 24. नाउ लुक एट इट रफली. आई एम अज्यूमिंग फुल डे ऑफ 12 hours. So this should take you a, चलो वर्स्ट टू वर्स्ट ले लो. 4 days अकाउंट्स, 4 days मैक्स 12 घंटे का अब दिन ले लो. आई एम नॉट सेइंग स्टडी फॉर होल डे अकाउंट्स. प्लीज डू नॉट फॉलो दैट स्ट्रैटेजी. कॉस्टिंग 4 दिन लिखो आप, और ये क्लीन आवर्स है. अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट 5 days. एफएम 3, इको 2, और आप सरप्लस का भी या एक मार्जिन के भी 3 दिन ऐड करके रखो. प्लस माइनस 3 तो भी कितना होता टोटल? 21 days.
मैक्स, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। क्यों नहीं लगेगा? मैंने मार्जिन के 3 पकड़े, प्लस इसके अंदर भी मैंने मार्जिन पकड़ा है। अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, मार्जिन का दिन अगर मैं एक्सक्लूड करूं, रह गया 18। 18 दिन में तुम ये आराम से खत्म कर सकते हो। अब तुम्हारे पास है कितने दिन? मार्च के 31, अप्रैल के 30, दैट्स इट। टारगेट होना चाहिए 15 पकड़ के। 15 दिन तो कम से कम आपने खुद के प्रॉपर रिवीजन के लिए रखने चाहिए। अब टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कैसा होगा आई डोंट नो, बिकॉज 15 अप्रैल के बाद टेस्ट सीरीज लेके तुम्हारा मतलब यू शुड बी एबल टू गिव अ टेस्ट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द पेपर विथ यू, आंसर्स, एंड आप खुद आपके हिसाब से जैसे पॉसिबल हो सके ना वैसा पेपर लिखो, क्योंकि हर एक का टाइमिंग स्पेसिफाई करना कैन एड अप टू अ सब्सटैंशियल प्रेशर टू यू। मैं अगर बोलूं 10 तारीख को पेपर चालू करना है और 10 तारीख तक किसी बच्चे का खत्म नहीं हो रहा है, he could come up under unnecessary stress. This problem is only because your batch started off everything late. There's no alternative. आपके पास 46 days अवेलेबल है, 46 days अवेलेबल है क्लीन। अब वो 46 के अंदर ये 4 के लिए आपने 18 दे दिए, आपके पास तभी भी कितना बचता है? 26 प्लस ये 2, 28 days for remaining 4 subjects, which is perfectly okay. 28 days के अंदर आपको अभी वो, I don't have any expertise in other subjects. Listen up. As far as the law is concerned ना, पहले other laws खत्म करना. Do not try to touch company law first. I will directly start first with General Clauses Act, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसमें करना क्या है? सारे के सारे एग्जाम का क्वेश्चन खत्म करके रखना, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। QRM सीरीज सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, पहले जनरल क्लॉजेस खत्म करो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स खत्म करो। सब्जेक्ट्स के अंदर भी अगर आपको, मैं बोलता हूं ना, आपको ये मिक्स करना है ना, यू स्टार्ट विद द लॉ फर्स्ट, टेक अप अलॉन्ग विद द लॉ, मे बी कॉस्टिंग, मे बी अकाउंट्स या ग्रुप 2। वो कॉम्बिनेशन कैसे करना है ना, यू दैट इज अप टू यू। आई विल नॉट से कि आप पहले यही कॉम्बिनेशन करो। कॉम्बिनेशन आपने क्या करना चाहिए दिन के अंदर? अभी आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए? 6 hours प्लस 6 hours प्लस 1 hour। पहले 4-5 दिन ऑडिट का जब तक चालू है तब तो थोड़ा तुमको कम टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम कम सो ना, थोड़ा टाइम कम सो आप, थोड़े दिन तक आराम से मैनेज होता है। आप मुझे मत बोलना कैसे मैनेज करना है शेड्यूल। सो 6 + 6 है ना, आप शुरुआत में यू पिकअप अ लॉ, यू मे पिकअप टैक्स हियर, और यू मे पिकअप एनीथिंग ऑफ these numericals, and this 1 hour you can keep just FME को, for example छोटे छोटे चैप्टर्स वाले जो चीजें ना, that 1 hour, or SM you can pick up anything, that 1 hour you choose। 661 खत्म। आप आराम से 15 अप्रैल तक डिसेंटली खत्म कर पाओगे। लॉ में मैंने क्या बोला पहले आपको? अदर क्लॉजेस, सॉरी जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन पहले खत्म करना है, देन निगोशिएबल। अब निगोशिएबल ना तुमको पूरा सता सकता है, लिटरली सता सकता है। तो दर्शन सर ने चार्ट दिया होगा, या मेरा पिछले बैच का माइंड मैप रहेगा, और क्वेश्चंस है, कुछ एक क्वेश्चन बैंक है बस। मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑफ नेगोशिएबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर गोना कम ऑफ फ्रॉम द दैट क्वेश्चन बैंक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बहुत छोटा है कंपैरेटिवली अभी तुमको, बिकॉज यू जस्ट हैव गॉट 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। निगोशिएबल बहुत बड़ा है, बट निगोशिएबल में दिमाग खराब हो सकता है तुम्हारा, डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये सारे अदर लॉज के लिए ना क्वेश्चन बैंक रहेगा। आप पिछले बैच से किसी से भी ले सकते हो, या किसी के पास रहेगा, या क्वेश्चन बैंक का जो बुकलेट रहेगा ना, उतना क्वेश्चन बैंक खत्म करो, एंड देन गो टुवर्ड्स अ कंपनी लॉ। डू नॉट स्टार्ट विथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी and memorandum of association and articles of association. Those are the worst chapter to study and teach.
The first thing that you should start directly is with dividend accounts audit. अकाउंट्स के अंदर CSR अच्छे से करना है, एक्सट्रीम लेवल पे CSR आपका होना चाहिए, बिकॉज MCQ क्वेश्चंस और केस स्टडी ओरिएंटेड जो केसलेट्स आएंगे वो वहां से आएंगे. सो डायरेक्टली कंपनी लॉ में मैं जाऊंगा डिविडेंड ऑडिट अकाउंट्स वो वाला पार्ट, देन मैनेजमेंट, देन डिपॉजिट्स चार्जेस एंड शेयर कैपिटल. पूरा रिवर्स सीक्वेंस में है. सबसे इनमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे आना चाहिए. यू शुड, और इवन इफ यू डू नॉट स्टडी मतलब ब्रीफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें भी क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का आप पढ़ सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मेमोरेंडम अल्टर करने के प्रोविजंस पढ़ सकते हो. वेरी लिमिटेड फोकस यू शुड डू. अगर आप शुरुआत में इनकॉर्पोरेशन से करोगे ना, यू विल गेट कंफ्यूज विद द फॉर्म नंबर्स एंड अदर थिंग्स. इवन इफ यू आर एबल टू लेट्स से फॉर्म नंबर्स याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी ठीक है, कुछ इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला. कौन सा चैप्टर का फॉर्म नंबर है वो चैप्टर के शुरुआत में वो नाम से ही समझता है, तो यू नो कौन से चैप्टर का है फॉर्म नंबर. एमसीक्यू में आ ही गया तो यू कैन मैनेज. सो मेरे हिसाब से पूरे लॉ को मैक्स टू मैक्स 5 days लग सकते हैं. अदर लॉज एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर 12 घंटे के 5 दिन 60 घंटे होते हैं यार. वेल इनटू 5 60 आवर्स इज इनफ. अब आप डीटी फिर जीएसटी, उसमें आपको 28 दिन बाइफरकेट करने हैं ना. ऑडिट, ईएस, एसएम. अब आप वो आपके हिसाब से करना है मेरे को. आई डो नॉट नो. टोटल मस्ट नॉट गो बियॉन्ड 28. वो कैसे टोटल 28 के अंदर हो सकता है. अगर आप ऐसा खत्म कर पाओ, ट्रस्ट में आखिरी के 15 दिन है, प्लस ये 15 अप्रैल तक का मैंने आपको बोला, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल उस शेड्यूल में ना रिवर्स वर्किंग चालू करने का. उस टाइम पे क्या करने का, वो जो 15 दिन है उस टाइम पे सबसे पहले लेने का एफएमई को, उसके बाद लेने का ईएसएसएम, उसके बाद लेने का ऑडिट, फिर एडवांस, फिर डीटीआईडीटी, फिर लॉ, फिर कॉस्टिंग, फिर लॉ. मतलब पूरा 1 to 8 की जगह पे 8 to 1 पे आने का, वो 15 दिन प्रॉपर. एंड देन अगेन 1 to 8 पे जाने का. इवन इफ टेस्ट लिखना अगर आपको जल्दी खत्म हो पाए, आप टेस्ट लिख के खुद चेक करना, क्योंकि अगर मैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दूं तो आई टू कीप अ ब्रेक ऑफ व्हाट 1 day एंड 8 पेपर 16 days आर रिक्वायर्ड मिनिमम. प्लस चेकिंग के लिए मुझे अगर 5 दिन भी रखने चाहिए एडवांस में, 21 days. आई हैव टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज ऑन 8th और 9th of April. समझा क्या? 8 या 9 तारीख को टेस्ट सीरीज चालू करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्या कर पाओगे, 16 पेपर लिख पाओगे. और अगर मैं टेस्ट सीरीज रखूं विदाउट अ हॉलीडे, देन देयर इज नो बेनिफिट. इट विल अननेसेसरीली क्रिएट अ स्ट्रेस कि मैं पेपर लिख ही नहीं पा रहा हूं. तो इससे अच्छा है आपके पास सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को भी आपने गो थ्रू किया तो भी चलेगा. या अगर आपका पेपर क्या होगा, क्या करो मैं बोलूंगा 15 अप्रैल तक आप पढ़ो. देन लिसन टू माय स्ट्रेटेजी. व्हाट आई विल डू इज 15 तारीख के बाद आपको 2 दिन आराम से मिलता है. 2 दिन मिलता है. लाइक ये 15 तक आपने खत्म किया, 15 से 30 अप्रैल 15 दिन होते हैं यार. एक आधा पेपर के लिए एक आधा कम डे, वन डे यू कैन रिड्यूस इट फॉर वन ऑफ द पेपर. व्हाट यू नीड टू डू, 2 दिन आपने एफएमई को पढ़ लिया, उसी दिन शाम को इको का एफएमई का पेपर लिखूंगा. मैं आपको पेपर शेयर करके रखूंगा, एक 8-9 तारीख तक मैं पेपर शेयर करूंगा. उसी दिन इमीडिएट पेपर लिखने के बाद ना 5 मिनट में चेक करने का. जो भी फीलिंग आएगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ट्रस्ट मी. आप अगर लेट्स से मैं आज सुबह बैठा, आज पूरा एफएम पढ़ा, पूरा इको पढ़ा, अगले दिन 2 से 5 या शाम के 8 से 11 वो वहां पे पेपर का टाइमिंग चेंज किया तो भी चलेगा. 2 से 5 लिख पाओगे तो बहुत बढ़िया. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 अप्रैल की जगह पे थोड़ा सा 2 दिन पहले खत्म करो, 13 तारीख तक पहले खत्म करो, तो बराबर वो फिर लिंक लग के आपको 30 अप्रैल पेपर 2 तारीख है 3 तारीख 3rd मई को है ना. हाँ फिर ठीक है, फिर ज्यादा दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन. मतलब 13 तारीख को भी, 13 या 14 अप्रैल को भी आपका खत्म हो गया. यू शुड मेक दिस शेड्यूल टुडे ऑन योर ओन.
ये मैंने आपको इंडिकेटिव डेज बोले. अगर किसी का यहां पर अच्छा प्रिपरेशन हुआ, प्लीज रिड्यूस नंबर ऑफ डेज फॉर अकाउंट कॉस्टिंग और एफएमई को और एडवांस, वो आप कम कर लेना डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अच्छा ये गया क्या? हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी? Zoom public, can you hear? Yes, now okay, okay. So 12-13 अप्रैल तक आप ये सब खत्म करो. उसके बाद स्टार्ट विद पेपर 8. एफएमई को पढ़ लिया, उस अगले दिन एफएमई को का टेस्ट लिखो खुद. क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो और हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी अगेन, इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्थफुल. दिस इज आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर योर अटेम्प्ट. क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है यार. कहां से 1 महीने का शॉर्टफॉल कहां से रिकवर करे? इट इज नॉट पॉसिबल. एंड दैट टू वी हैव फिनिश एवरीथिंग इन टाइम. मैंने आपको एक भी दिन छुट्टी, ग्रुप टू में मेरे हिसाब से एक भी दिन छुट्टी नहीं दिया ना मैंने. मेरे नॉट इवन संडे छोड़ के. संडे एक संडे लिया था मैंने. ओनली 1 संडे आई टुक, दैट टू इट वाज वो फंक्शन था, इसलिए उस दिन आना ही था मेरे को, तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने लिया. नहीं तो मैं संडे स्कोप ही नहीं है. इतना पढ़ो, इसके बाद भी आप फेल हो गए, चलता, बिंदास चलता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट वो फेल्यूर का आज सोचो मत. आपके पास इनफ टाइम है, इनफ आपने एफर्ट्स लिए, तो ये फालतू के 2 महीने में उसको खोना मत. स्टडी वेल, राइट? सी यू इन सीए फाइनल होपफुली.